खुदावंद यीशु के नाम में आप सबको सलाम। मैं ज़बूर पढ़ूँगा 134। है खुदावंद के बंदो, आओ सब खुदावंद को मुबारक कहो। तुम जो रात को खुदावंद के घर में खड़े रहते हो, मकदिस की तरफ अपने हाथ उठाओ और खुदावंद को मुबारक कहो। खुदावंद जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया, सयून में से तुझे बरकत बख्शे। आमीन। अब मैं चाहूँगी कि हम अपने आप को तैयार करें कलाम के लिए। और मैं सबसे पहले गैब्रियल, फिलोमिना, आइवन और साइमन सब आए और अपना जो भी आज का हम सब के लिए कलाम है शेयर करेंगे हम लोगों के साथ। Good evening, everybody. Today I was going to talk about prayer. I know prayer can do many things in our lives. It has affected us all, and every day my parents, they pray for everybody in this sanctuary here. And well, now I'm 14, and in 14 years I've seen many miracles in my life. And as you all know, like I was born in a pastor's family, so of course I've seen many miracles. But many people have been healed, many people have been saved, and it's not just because we pray for them, it's because God does his work. And when we look to the Lord, he does come, he does look back at us. So I wanted to turn to 1 Chronicles chapter 16 verse 11. And here it says, "Seek the Lord and his strength, seek his presence continually." Can somebody read in Urdu? 11th, 11वीं आयत. Amen. So here it says that we have to seek the Lord. And when we seek the Lord, does anybody know what happens? Anybody? What? We find him, exactly. He's not going anywhere. He's in heaven. And we sing many songs where it says like the blind will be healed and like they will see, the paralyzed will walk. We don't just sing that. That's true. That's actually what happens. And prayer, when we pray, it doesn't have to be like a big prayer. It doesn't have to be a long prayer. And our words, they don't have to be that important. We can use any words. We can probably pray with just 2 words and God will listen. And it doesn't really matter how, we don't even have to use words. We could just think something and God will do it. That's the power of prayer. 14 years back, God heard a little girl's prayer when she said that, "Lord, give my mom another baby." Now I'm here. And many things like that have happened in our family, and they can happen in yours too. Even from a small child to a big adult, God will still listen to you. And if you don't claim your healing, if you don't claim from God, he's not going to give it to you. Like, if you ask, he will give it to you.
if it is if it is God's will, then He will give it to you. And a lot of people take long prayers. A lot of people take short prayers. Doesn't really matter, you know. God's listening anyways. Like, you could even talk to Him if you're lonely. I know, like, there's some people who can't stop talking to you. They just like they're gonna go on and tell them how your day went, what they did at their job, what they did when they went over there, when they went over there. They just keep on talking, and you get annoyed. They can talk to God, He's not gonna get annoyed. You know, you could tell God if you're sad, if you're lonely, or if you need healing, He will listen. And if we turn to Matthew chapter 6, verse 7. If somebody has it open, can they read? और दुआ करते वक्त गैर कौमों के लोगों की तरह बकबक ना करो, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारे बहुत बोलने के सबब से हमारी सुनी जाएगी। Here in English it says, "And when you pray, do not heap up empty phrases as the Gentiles do, for they think that they will be heard for their many words." Like, don't keep on talking, you know. Like, you're not going anywhere if you just keep on talking. Like, here it's basically saying that there are people who pray, they'll just keep on saying stuff like, oh, pray for me, I need to do this tomorrow, and help me with that. Of course, you know, God will help, of course, but you just keep on going on and on. If you talk about useless topics, unimportant topics, you know, sometimes it could be unimportant. But there are some things where you have to pray, like, let me think. If it's something that is worth praying for, you should. Like, I remember when my parents went to Canada, somebody asked my mom, "Oh, can you pray for me? I'm trying to be." He was like, "I want to be a hero, so can you pray for me?" I mean, that's why would you pray for that? That's my question. So I just wanted to say that if you ask, you will receive. And praying has very much power. And so if we turn to Ephesians, this is the last verse. Ephesians chapter 6, verse 18. It says, "Praying at all times in the Spirit, with all prayer and supplication. To that end, keep alert with all perseverance, making supplication for all the saints." Can somebody read Urdu? और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो और इसी गर्ज से चाहते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ किया करो। Praying at all times. Pray all the time. You can pray for anything. It's God's choice if He will give. Like, there are some exceptions where He probably won't. Because if He doesn't want you to have something, it's for the greater good. It's not going to be like, you can keep on asking and keep on asking. And if He's not giving to you, you should take a hint, you know, get the point that He doesn't want you to have it. And sometimes He does give it to you, but after a long time. That's happened many times in the Bible.
I mean, they say like many years passed and then he received it. Like about 6 years ago, or maybe more, we had this one car, but it broke down a lot. It was not a very good car. I had been praying for a new car for years, and we never got one. And it was up till the last point where the car just started breaking down, where we just got tired. We were like, we want a new car. We're not getting a new car. And so we kept on looking and looking for new cars. And one thing was that whenever I prayed, I always prayed for a red Toyota Sienna. And that was the specific model that I wanted, a red Toyota Sienna. And we did eventually get that. But that was after years of praying for it. And this is, well, because it was God's timing. If he didn't want to give it to us at that moment, he had his reasons. And, well, what actually happened was one day, after a long time of searching and searching, my dad and Ivan, they were going to go look for one person who was showing a car. And I was like, you know what, I'm done. I don't want to look anymore. I don't want to go, because we weren't getting a car. So I figured, what's the point of going if we're not going to get it? We went and we got that car. And I gave up at that moment. So, you know, God's timing is very great. And I just basically wanted to say that if we pray, miracles will happen. Every Wednesday we get together and we pray. I cannot tell you how many times every Wednesday when we pray, God hears our prayers and they're answered. And it says here, like we just read, pray all the time, at any occasion. Like whenever we go to somebody's house, I'm telling you, this is not a lie. My dad and my mom always pray. Everywhere we go, every time we go somewhere, if it's somebody's house, if it's somebody's job, they will pray for them. They will pray for their whole family, their whole office, their whole job. They will pray no matter what. It's just something they do. And that's why they're so blessed. And every day, I'm tired of it, but they don't get tired. Every day they get calls, can you pray for me? Can you pray for me? Like if I come home from school, I go to mom, what's that? Oh, okay, you're praying? Okay, I'll come back later. I don't like it, but you know, it's their job, so what am I gonna do? Like they're praying, everybody calls. I'm pretty sure everybody in this room has called one of my parents to pray for them. I can assure that. And so I just want to end on that note that if we pray, God will listen. Thank you. बच्चों को इनकरेज करने के लिए साथ साथ आमीन कह दिया करें, हालेलुया कह दिया करें, तालियां बजा दिया करें हमें। Let's acknowledge if it is encouraging thing, if it is a good thing, they are saying, let's encourage them. Just saying amen, hallelujah, praise God, or we can even clap. Praise Jesus, hallelujah. मैं ये गीत के एक कोर्स के थोड़े से बोल गाना चाहूँगी और आप सबसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपनी आंखों को बंद करें, खुदा की हजूरी को महसूस करें। You deserve the glory and the honor. You deserve the glory and the honor. I lift my hands in worship as I lift your holy name.
You deserve the glory and the honor. I lift my hands in worship as I lift your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. कुदूस मेहरबान बाप ज़मीन और आसमान बराबर के खालिक व मालिक आसमान तेरे तक खुदावंदा इस्लाम मैं अपने आप को तेरे पाक हजूरी में खुदावंदा हदायत दे, रूह की हदायत दे कि मेरे लबों का ज़िम्मा पाक रूह ले, और खुदावंदा जो तू चाहता है मैं वही बोलूं और तेरे लोग आज यहाँ से कुछ सीख के जाएं। यीशु के नाम से मांगा और पाया, आमीन। आपसे थोड़े से क्वेश्चन करूँगी मैं, बहुत ही कॉमन आंसर होंगे। आप सब में से कितने लोग खुश हैं कि वो आज खुदा के घर में हैं? आप लोग हाथ खड़ा कर सकते हैं। आमीन। आप में से कितने लोग हैं जो समझते हैं कि वो खूबसूरत हैं? मैं तो समझती हूँ खुदा ने मुझे अपनी शबीह में बनाया है। तीसरा क्वेश्चन, आप में से कितने लोग समझते हैं कि वो जोशीले हैं? बस मैं 3 बार आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि खुदावंद यीशु मसीह के नाम का नारा लगाएं। मैं बोलूँगी यीशु मसीह की और आपने बोलना है जय। रेडी? यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, हालेलुया। मैं ईमान रखती हूँ कि आप सब लोगों को शैड्रक, मिशक और अबेदनगो की स्टोरी का पता होगा। आज मेरा जो थीम है वो यही है कि खुदा अजीम है और उसके काम अजीब हैं। जो इंसान के लिए नामुमकिन है वो खुदा के लिए मुमकिन है, और जो की है वो है ईमान। एक इंसान में, एक मसीही में 3 खूबियाँ होनी चाहिए, और वो खूबियाँ हमें शैड्रक, मिशक और अबेदनगो में नज़र आती थी। उस टाइम का जो रूलर था वो था नबूकदनेस्सर, और उसने अपने लिए एक सोने की मूरत बनाई थी जो कि 90 फीट टॉल थी, और वो गोल्डन इमेज थी। उसने ऐसा रूल जारी किया था कि जो भी इसको सजना नहीं करेगा उसे मैं आग की भट्टी में, जलती हुई आग की भट्टी में ना वो झोंसा जाएगा, उसे झोंक दिया जाएगा। तो ये पहली जो खूबी जो शैड्रक, मिशक और अबेदनगो में पाई जाती है वो ये थी कि उन्हें ईमान था कि हमारा खुदा सब कुछ कर सकता है, और उनके माइंड में ये बात थी जो कि पहला हुक्म है कि एक खुदा को मानना, फ़कत उसकी बंदगी और उसी को सजदा करना। तो जब नबूकदनेस्सर ने सबको ये हुक्म दिया तो सबके लिए था ये कि उन्होंने फॉलो करना है। तो उन्होंने, ये पहली खूबी उनमें थी कि उन्होंने इनकार किया। उनको पता था कि रिज़ल्ट उसका क्या होगा, कि अगर वो इनकार करेंगे बाव डाउन करने के उस मूरत के आगे, लेकिन उन्होंने इस बात की केयर नहीं की। सेकंड चीज़, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, और ये एक मसीही के अंदर एक खूबी होनी चाहिए कि चाहे जैसी मर्ज़ी सर्कमस्टेंसेस हों, हम कॉम्प्रोमाइज़ कभी ना करें। हम खुदा को पहला दर्जा दें और उस दर्जे को वहाँ पर कायम रखें, कभी भी उसको वहाँ से नीचे ना लेके आएँ। और तीसरी चीज़, वो खुदा का होता है टर्न। तीसरी चीज़ ऐसे हुआ कि जब नबूकदनेस्सर बादशाह को पता चला, उसने उधर ऐसी की चीज़ हो रही थी वहाँ पर असेंबली में कि म्यूज़िक बजना था और सब ने झुककर उसको सजदा करना था। वो तीनों लोग खड़े रहे, दे स्टूड स्टिल, और उनको पता था, इन देयर हार्ट दे बिलीव्ड कि खुदा हमें बचा लेगा। उनको पता था, और ये ईमान हम सब मसीहों में होना चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि अगर हम खुदा के लिए स्टैंड लेंगे ना तो वो संभाल लेगा। तो उनको आग की भट्टी में झोंका गया, और अब नबूकदनेस्सर ने बोला था कि वो आग की भट्टी जो है उसे 7 टाइम्स
हॉटर, वो उसे 7 गुना ज़्यादा गर्म करें नॉर्मल से। तो जब उन्होंने तीनों को जब देखा कि ये इन लोगों ने उसके हुक्म की तामील नहीं की, तो उन्होंने उसको झोंक दिया वो आग की भट्टी में। अब शैड्रक, मिशक, अबेदनगो ने अपना पार्ट कर दिया। वो तीसरा पार्ट वो खुदा का था कि वो खुद आया और नबूकदनेस्सर जो था वो हैरान रह गया कि मैंने 3 लोग आग की भट्टी में फेंके हैं, ये चौथा कौन है? और वो लोग आग की भट्टी में ऐसे घूम रहे हैं जैसे कुछ हो ही नहीं रहा। और यही तीसरी चीज़, खुदा हमें हमारी ज़िंदगी में अपने जलाल को ज़ाहिर करता है कि जब हम उसके लिए स्टैंड लें तो वो अपने मोजज़ात को रूनुमा करता है हमारी ज़िंदगी में। और मैं इस बात को एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ कि अपनी लाइफ में जब हम खुदा के लिए खड़े होते हैं ना, तो खुदा मेक श्योर करता है कि हम शर्मिंदा ना हों, और वो हमें सरबुलंदी बख्शे। वो हमें लोगों के सामने, क्योंकि वहाँ पर बाकी सारे लोग झुक गए थे और सिर्फ ये तीनों थे जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के लिए स्टैंड लिया। और नबूकदनेस्सर बादशाह ने भी देखा कि इनका खुदा सच्चा खुदा है जिनके लिए इन्होंने स्टैंड लिया। और आखिर में मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये सारी खूबियाँ हमें अपने में एनालाइज करनी चाहिए कि क्या हम खुदा पर सच्चे दिल से ये ईमान रखते हैं कि वो हमारे लिए कुछ भी कर सकता है? क्या हम ईमान रखते हैं कि वो आज भी मौजज़ात करता है? क्या हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते एज अ क्रिश्चियन? क्या खुदा हमारी ज़िंदगी में आकर हमें मौजज़ात रूनुमा करता है? ये सारी सवाल आप अपने आप से करें और खुदा के पाक रूह को अपने अंदर आने के लिए कहें और उसे कहें कि खुदा हमें वैसा बना जैसा तू चाहता है। और एंड में मैं ये कहूँगी कि ईमान रखें, ऐसा बाइबल में लिखा है, मैं खुद से नहीं कह रही। रोमन्स चैप्टर 8:31 उसकी वर्स, एज लॉन्ग एज यू नो दैट गॉड इज़ फॉर यू, इट डजंट मैटर हु इज़ अगेंस्ट यू। कोई उर्दू में पढ़ेगा? रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 31। हालेलुया। हालेलुया, आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। Good afternoon, everyone. Thank you, Philly, for that wonderful message. Gabe, too. That was great, I guess. I'm kidding. That was amazing what you did and what you said. So, I wanted to talk about something that we all have and that God has given us, but we don't use it as much as we should. And the levels of this, it varies between each person. And that is the wisdom that God has given us. And specifically, I wanted to read from 1 Kings chapter 3. And it says here that Solomon asked for the wisdom because he said that he was young and he didn't know what to do. So he asked for wisdom because what he did for the Lord, he brought 1,000 sacrifices on a high mountain. And God loved this. He adored what Solomon did. And because of that, God asked him, "What do you want?" Solomon could have literally asked for anything. He could have asked for riches, women, more goats to sacrifice, which later he actually did. Not asked, but he actually did sacrifice more goats, tenfold actually. But he asked for wisdom.
And that is something that we need to take into consideration, that God has given us all wisdom, and we need to use that in order to get the word out there. We as young people in the church and in the world, we need to use God's wisdom in our lives every single day. For example, every time my friends, they have a problem in their life, whether it be relation or even if it's like a game thing, they come to me for wisdom. They come to me and ask, how should I do this? Because they know that I have the wisdom that God has given me. And they know that I will give them the right answer. And if it usually does go beyond my abilities, and for that, I do actually pray with them. That is one way that I use it. Gabe does something similar. Not sure how similar, but he does something similar with his friends. And this is something that we should all do in our everyday lives. And the reason why he gives us this wisdom is that he has a plan for us. God has a plan for us to use what we have for his works. It says in Jeremiah 29 that he has a plan for us. It says in Jeremiah 1 that from the day we were born, before even our inception, he had a plan for us. He had the idea that this person is going to do something great. He had this plan for Solomon too. He had this plan for the son of King David. And Solomon went on to do many great things. Although he did falter very far into his life, he did do many great things. He built up the first temple for the Lord. And that is my main message, that we need to use the wisdom that God has given us in order to go out there and tell people that God has the wisdom for you. Just ask for it. Thank you. आए हम अपने सरों को झुकाएं. लेट्स प्रे. खुदावंद बाप, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ इस मौके के लिए जो आपने मुझे दिया कि मैं सबके सामने खड़े होके आपके मैसेज को शेयर कर सकूं. हालांकि आप जानते हैं मैं बड़ा नर्वस हो जाता हूँ खड़े होके, बट खुदावंद आपका शुक्र है. थैंक यू दैट यू सी द बेस्ट इन अस लॉर्ड एंड यू इनकरेजेस अस डिस्पाइट आवर वीकनेसेस लॉर्ड. थैंक यू. अपने फजल का हाथ मुझ पे रखना, और आज जो कुछ भी मैं शेयर करूं आपके पाक रूह से हो, और अगर मेरे से कोई उर्दू में गलती हो जाए तो माफ़ कर देना, थोड़ी सी कमज़ोर है. दुआ मैं मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन. गुड आफ्टरनून. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू Pastor Derek and Pastor Challa for giving me this opportunity. Thank you my mentor Hugo for coming here, and thank you all for being here. और मुझे कुछ मिनटों के लिए बर्दाश्त करेंगे तो उसके लिए भी थैंक यू. आई वुड लाइक टू शेयर 2 प्रॉब्लम्स अपनी लाइफ के. सबसे पहला स्टेज फियर,
लोगों के आगे बोलना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मेरा। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट उर्दू का, मेरे लिए उर्दू बोलना बहुत मुश्किल है। आई मीन बोलना आसान है, लेकिन पढ़ने में और लिखने में आई एम वेरी वीक। और गेब जानता, अभी मैंने कुछ स्लाइड्स बनाई थी उर्दू में, मुझे वर्सेस चाहिए थी, तो गेब ने मेरी हेल्प किया। और मैं थोड़ा सा एम्बेरस फील करता हूँ कि मैं वो यहाँ पे पैदा हुआ है, ही इज़ वेरी बेटर इन उर्दू दैन मी। तो एक्चुअली ये पाकिस्तान में काफ़ी जितने भी है ना इंग्लिश मीडियम के बच्चों, उनका प्रॉब्लम है ये कि हम उर्दू पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। तो मेरा भी कुछ प्रॉब्लम था, मैं उर्दू में 3 दफ़ा फ़ेल हुआ हूँ क्लास में। मैट्रिक में बड़ी मेहनत की मैंने उर्दू में, और उसकी वजह से रट्टे लगा लूँ कि मैं पास हो गया। घर वाले बड़े खुश थे, माँ ने मिठाई भी बांटी थी मुझे लगा उर्दू की टेंशन ख़त्म होगी मेरी लाइफ की, लेकिन पता चला कि इंटर में भी उर्दू कंपलसरी है, और उसकी वजह से मैं क्या लो अब तो गया। 2 साल लगे, उर्दू फिर से पढ़ी, और इस दफ़ा मुझे था कि मैं पास नहीं हो सकूँगा। 2009 में मेरा रिज़ल्ट आया, एंड आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि वो अच्छा होगा, और मैं रिज़ल्ट लेके आया हूँ अपना इतना अच्छा नहीं है, लेकिन मैंने जब देखा कि मैं उर्दू में पास हो गया, ना रेड था ना फेल लिखा हुआ था, तो आई वाज़ वेरी हैप्पी कि शुक्र है जान छूटी मेरी। लेकिन जब मुझे सुकून मिला, मैं बैठा तो मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे 55 नंबर आए थे आउट ऑफ 200, विच आर नॉट गुड। फेलिंग मार्क्स हैं, अच्छे नंबर नहीं, अगर देखा जाए तो इट्स लाइक 27.5%। और बोर्ड में अगर आपको याद होगा 33 वाला पास होता है, राइट। तो मैं सरप्राइज़ हुआ कि मैं पास कैसे हो गया, मतलब 55 नंबरों पे किस तरह पास हो गया। तो अगर आप देखें उसके ऊपर एक स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब नीचे इंस्ट्रक्शन है, दैट मीन्स क्वालिफाइड अंडर रूल 12 कंसेशन मार्क्स। अब कंसेशन मार्क्स काफ़ी लोगों को पता है, कंसेशन या ग्रेस मार्क्स होते हैं। ये टीचर्स अगर भी होंगे तो ये समझते हैं कि स्पेशल स्टूडेंट्स को देते हैं। जब जो बच्चा या तो पेपर बहुत डिफ़िकल्ट आया हो उस वजह से देते हैं, या फिर बच्चा बाकी सब्जेक्ट्स में अच्छा कर रहा हो लेकिन कुछ सब्जेक्ट में किसी वजह से अच्छा ना कर सके, तो ये टीचर एक स्पेशल फेवर देती है। और मैंने क्योंकि कोई अच्छा कारनामा नहीं किया था, मेरी उर्दू बहुत फ़ारक थी, मैंने तो पढ़ा भी नहीं, मैं जागा भी नहीं था जिस तरह लोग मेहनत करते हैं, लेकिन सम हाउ मैं पास हो गया, और इट वाज बिकॉज ऑफ दोस ग्रेस मार्क्स। मैं ये क्यों बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर हम ग्रेस को समझ जाएं तो हमारे लिए खुदा को समझना आसान हो जाएगा। क्योंकि खुदा का एक ऐसा रोल है हमारी लाइफ में जो हम डिज़र्व नहीं करते थे, बट सम हाउ खुदा ने हमें अपने फजल से बचाया। तो व्हाट इज़ ग्रेस इन सिंपल टर्म्स इज़ लाइक एन अनडिज़र्व्ड फेवर। ठीक है, बिला वजह की वो जो है ना मेहरबानी होती है जो आप डिज़र्व नहीं करते, लेकिन सम हाउ खुदा हमें देता है। और हम बाइबल में से एक वर्स पढ़ेंगे, इसको मैं ऊपर लिखी हुई है लेकिन मैं उर्दू में पढ़ देता हूँ। इफिशियंस में 2 चैप्टर 8 से 9 वर्स है। इसमें पॉल कहता है कि क्योंकि तुमको ईमान के वसीले फ़ज़ल ही से नजात मिली है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं है, खुदा की बख्शिश है, और ना अमाल के सबब से है, ताकि कोई फ़ख्र ना करे। आमीन, राइट। पॉल यहाँ पे कहना चाह रहा है कि ग्रेस इज़ अ फ्री गिफ्ट, इट्स अ गिफ्ट, राइट। ये हम खुदा को, जब हम खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करते हैं तो हमें इंस्टेंटली एक गिफ्ट मिलता है खुदा की तरफ से, समथिंग जो हम डिज़र्व नहीं करते हैं। मुझे लगता है पॉल जो था ना, ही वाज़ वेरी ऑब्सेस्ड विद ग्रेस। उसका ये था कि जब से उसने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की ग्रेस, ही वाज़ लाइक ही इज़ दी ओनली पर्सन जो बाइबल में सबसे ज़्यादा ग्रेस का वर्ड यूज़ करता है। हर लेटर में सबसे ज़्यादा ग्रेस का वर्ड पॉल यूज़ करता है। वो क्यों करता है? क्योंकि वो उसने अपनी पर्सनल ज़िंदगी में उसको एक्सपीरियंस किया। और मैं ये सोचता हूँ कि अगर हम एक्सपीरियंस नहीं, खुद नहीं पर्सनली एक्सपीरियंस करते, तो शायद मेरे लिए भी समझाना मुश्किल है कि ग्रेस है क्या, जब तक आप एक्सपीरियंस ना कर लो इसको। तो इट्स मोर लाइक एन एक्सपीरियंस। मैं ये पिछले दिनों सोच रहा था कि अगर पॉल आज की सदी में होता तो वो मतलब क्या कर रहा होता। तो मेरे दिन में आया कि वो ना यूट्यूबर होता, यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा होता क्यों? क्योंकि यूट्यूब एक वाहिद प्लेटफॉर्म है जिस पे आप पूरी दुनिया में अपना मैसेज शेयर कर सकते हो, राइट। तो और उसकी हर वीडियो पे सेव्ड बाय ग्रेस के ही कोई ना कोई वीडियो क्लिप भेज रहा होता, वो लोगों को बता रहा होता ये ग्रेस है, ग्रेस है। और अगर वो ट्विटर पे होता तो वो उसका कुछ, मैं एक स्क्रीनशॉट लाया था, उसको इस तरह के हैशटैग यूज़ कर रहा होता, सेव्ड बाय ग्रेस, राइट। क्योंकि वो पागल सेव ग्रेस के ऊपर वो ही वाज जस्ट टेलिंग एवरीबडी दैट आई एम सेव्ड बाय ग्रेस, और ग्रेस उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट थी।
अब ग्रेस हमारे लिए समझना क्यों मुश्किल है, क्योंकि हम इस दुनिया में एक रिवॉर्ड बेस्ड सिस्टम में रहते हैं, और वो सिस्टम हमें ये सिखाता है कि कुछ पाने के लिए आपको कुछ स्ट्रगल करना पड़ता है, राइट। आपको कुछ भी लाइफ में चाहिए, घर चाहिए, मेहनत करोगे, पैसा कमाओगे, जोड़ोगे तो फिर ही मिलेगा ना। कोई ये तो नहीं है कि साइमन अमेरिका आया तो फ्री में घर गिफ्ट कर दिया इसको किसी ने, ऐसे नहीं होता। आई हैव टू वर्क फॉर इट, मुझे मेहनत करना। तो इसलिए मुझे हर चीज़, छोटी से छोटी चीज़ लाइफ में यही सीखने को मिलती है कि मेहनत करोगे तो उसका फल मिलेगा, उसका अजर मिलेगा। और काफ़ी रिलीजियस सिस्टम्स भी ऐसे हैं, काफ़ी लोग जो ये मानते हैं कि हाँ मेहनत करोगे तो जन्नत में जाओगे, या आपका मेहनत करके ही है खुदा का दिल जीतने का तरीका है जन्नत में जाने का। पर आई फील लाइक ऐसा रियलिटी में नहीं है। ऐसा अगर हम पीछे दुनिया के सिस्टम से हट के बाहर देखें तो खुदा डिफरेंट तरीके से ऑपरेट करता है। हमें खुदा ने खुद एक्सेप्ट किया है, हमारा कोई कमाल नहीं था, और खुदा खुद हमारे पीछे आया और उसने अपने फजल से हमें बचाया, हम डिज़र्व नहीं करते थे। और आई फील लाइक ग्रेस इज़ अ वेरी पावरफुल वर्ड। इसको हम फजल वैसे बोलते हैं, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। और क्राइस्ट ने अपनी मिनिस्ट्री में, फ़न फैक्ट ये है कि क्राइस्ट ने कभी ये वर्ड यूज़ नहीं किया थ्रू आउट हिज मिनिस्ट्री, लेकिन ही ऑलवेज लिव्ड इट एंड ही टॉट इट। तो 3 एग्जांपल्स में लेके आऊँ जो क्राइस्ट ने यूज़ की आगे। 3 ऐसी चीज़ें थी थ्रू आउट। आप कोई भी जब भी स्टडी करें क्राइस्ट की लाइफ को, तो ही इज़ ऑलवेज टीचिंग ग्रेस, या एक्सपीरियंस करवा रहा है ग्रेस। पहली एग्जांपल थी द गुड समैरिटन ने, एक सामरी जिसको बोलते हैं, उसकी स्टोरी में क्या था कि एक यहूदी था, एक ज़ख्मी पड़ा हुआ था, और एक अच्छा सामरी आता है। बाकी लोग गुजर जाते हैं लेकिन एक सामरी होता है, उस पर तरस खाता है, और इवेंचुअली वो उसको हॉस्पिटल लेके जाता है और उसके ना एक्सपेंसेस के लिए भी पे करने को तैयार होता है। क्राइस्ट ये क्यों समझा रहे हैं कि कहानी का क्या पर्पस क्या था। उस ज़माने में जो सामरी थे और यहूदी थे उनकी आपस में टसल थी, राइट। वो जस्ट लाइक कैथलिक या प्रोटेस्टेंट की आजकल चलती है, आपस में लड़ते रहते हैं आपस में, तो उस टाइम इनकी भी एक टसल थी। बट क्राइस्ट ये शो करना चाह रहा था कि क्योंकि एक सामरी था, उसने देखा एक ज़ख्मी बंदे को, उसने तरस खाया, वो एक ऐसी चीज़ जो डिज़र्व नहीं करता था, वो जा सकता था छोड़ के रास्ता, लेकिन वो क्यों रुका? बिकॉज ही वांटेड टू शो ग्रेस, राइट, ग्रेस की वजह से। और हम ये सोच सकते हैं कि क्या आज भी हम किसी अनडिज़र्व बंदे को ग्रेस दिखाते हैं, करते हैं? वी नीड टू थिंक अबाउट इट। अगली थी द अडल्ट्रस वुमेन, एक जनाकार औरत की कहानी ये थी, इंसिडेंट था कि एक औरत जो जना में होती है और लॉ के अकॉर्डिंग हर बंदा उसको पत्थर मारने को तैयार है, एंड क्राइस्ट आता है और कहता है जिसने गुनाह नहीं किया वो पहला पत्थर मारे। क्यों क्राइस्ट करता है ऐसे? बिकॉज ही वॉज ट्राइंग टू शो ग्रेस। वो फजल दिखाने की कोशिश कर रहा था कि इवन दो ये औरत डिज़र्व करती है, इसको पत्थर से मार देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि मैं उसका अपना फजल दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे लोगों को। और तीसरी स्टोरी जो मेरी पर्सनल फेवरेट है, द प्रोडिगल सन, मुशर्रफ बेटा। मुझे ये कहानी बचपन से बहुत दफ़ा सुनी, और मैं इवन तो मसीह को कबूल करने से पहले भी कहानी ना मुझे पता नहीं क्यों बड़ी टच करती थी कि एक बाप है, एक बच्चा है जो अपने बाप की जायदाद छोड़ लेके तो पार्टीज़ में उड़ा रहा है और याशी कर रहा है, और इवेंचुअली वो पैसे ख़त्म हो जाते हैं, तो ही रियलाइज़ कि मुझे वापस जाना चाहिए। और वो वापस आ रहा होता है और सोच रहा होता है कि पता नहीं बाप एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, लेकिन बाप उससे पहले ही गेट पे खड़ा हुआ है, और ना सिर्फ वो वेट कर रहा होता है, वो बाप उसको जाके गले लगा लेता है। वो क्यों करता बाप ऐसा, समझना मुश्किल है, राइट, कि क्यों बाप करेगा ऐसा। उसको तो वो डिज़र्व ही नहीं करता था, उसको कहता है कि जाए चला जाए, क्यों आया वापस। लेकिन क्राइस्ट वाज ट्राइंग टू शो कि हाँ खुदा ऐसा है, खुदा अपना फजल से आप लोगों को बचाता है। इट्स नॉट आपकी कोई इसमें कमाल नहीं है, इट्स जस्ट ग्रेस, राइट। तो मेरा एक्चुअली पर्सनल एक्सपीरियंस कुछ अच्छा नहीं था। मैं 7 साल से ना कभी चर्च गया, ना कभी खुदा को जानने की कोशिश की, और पर्सनली मुझे ये था कि खुदा क्यों मेरे से बात करना चाहिए, खुदा हमें क्यों, मतलब मैंने ऐसा कोई तीर नहीं मारा, ना मैं बाइबल पढ़ता हूँ, ना मैं दुआ करता हूँ, और खुदा जिसने कायनात बनाई है वो क्यों मुझसे आके बात करेगा, और मैंने तो ज़िंदगी में गुनाह भी इतने किए हैं, मुझे क्यों माफ़ करेगा वो। लेकिन समहाउ मुझे बाइबल इंट्रोड्यूस कराएगी और मैंने पढ़ना शुरू किया, और समहाउ मेरे दिमाग में बातें आई कि आई नीड टू फिक्स यू, यू नीड लव एंड आई लव यू। और मेरे लिए समझना मुश्किल था कि मैं खुद कर सकता हूँ, मेरी लाइफ, अपनी लाइफ को मैं खुद फिक्स कर सकता हूँ, मुझे नहीं ज़रूरत। बट समहाउ वो आवाज़ें मैं नहीं अपने दिमाग से निकाल सका, एंड आई हैड टू सरेंडर। मुझे खुदा के आगे झुकना पड़ा, एंड आई वाज लाइक आई नीड हेल्प, मैं खुद नहीं कर सकता। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मुझे
खुदा को कबूल करने से पहले उसने मुझे कबूल किया, मतलब मुझे गुनाह में देखा और फिर भी उसने मुझे एक्सेप्ट किया नो मैटर व्हाट। दैट इज़ ग्रेस। और एक और ना सिर्फ बात यह है कि एक वक्त की ग्रेस नहीं है, मतलब कि पहले मुझे माफ़ी मांगी कबूल कर लिया दैट्स इट, नहीं है। आई थिंक इट्स मोर देन दैट। ग्रेस इज़ कांस्टेंट। वो कंटिन्यूसली खुदा आपको रोज़ ब रोज़ आपकी ज़िंदगी में ग्रेस देता है। और वो किस तरह देता है कि हम पढ़ेंगे इसमें, फिलिपियंस में एक आयत है जिसमें पॉल कहता है कि और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में एक नेक काम शुरू किया है वो उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा कर देगा, राइट। मतलब इट्स नॉट अबाउट मी, ये यू हैव टू रिमेंबर कि ये कहानी खुदा की है, इट्स अबाउट गॉड। शुरू से एंड तक ये सिर्फ खुदा के बारे में, हम सिर्फ एक पार्ट हैं उसका। और हम खुदा के लिए क्या करते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं, हमारा रिश्ता इम्पोर्टेंट है खुदा के साथ। और अगर मैं अपने आप को देखता कि मेरी लाइफ ना भी परफेक्ट है ना परफेक्ट थी कभी, लेकिन मैं ये ज़रूर सोचता हूँ कि अगर 2 साल पहले मैं अपनी लाइफ को देखता तो तब से थोड़ी सी 5% बेहतर है। आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो। पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है, गलतियाँ होंगी और मिस्टेक्स भी होंगी, लेकिन आई नो कि गॉड इज़ हियर एंड उसका फजल हर टाइम अवेलेबल है। आई कैन आस्क फॉर इट, राइट। और ना सिर्फ फजल बल्कि जब हम सोचते हैं ना कि ये खुदा के साथ जब आप कबूल करते हैं तो आप एक जर्नी शुरू कर लेते हैं, और इट्स जस्ट लाइक अ रिलेशनशिप विद गॉड। और वो एक रिलेशनशिप स्टेटस ही मैं लगाया था फेसबुक पे, क्योंकि यूथ इंडिया तो लोगों को बड़ा शौक होता है फेसबुक स्टेटस लगाने का। तो आई फील लाइक कि ये सम हाउ कनेक्ट करती है बात कि जब आप एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में आते हैं, आप बोल देते हैं कि आई लव यू, राइट। तो आप उसको कमिट कर लेते हैं अपने आप को उस बंदे के साथ या बंदी के साथ। कमिटमेंट में आपको फिर टाइम लगता है जानने के लिए, सीखने के लिए उसको क्या अच्छा लगता है, क्या चीज़ें बुरी हैं, और कभी कभी आप भटक भी जाते हो, गलतियाँ भी कर लेते हो, लेकिन आप ये नहीं सोचते हो कि यार क्योंकि मैंने कमिटमेंट किया उस डर की वजह से मेरा रिश्ता ख़राब हो जाएगा। नहीं, मेरे ख्याल से आप ज़्यादा हमारा फोकस होता है कि क्योंकि उस रिश्ते में प्यार है और प्यार की इंपॉर्टेंस है, तो प्यार की वजह से आप गलती ना कर लें, और गलती करते हैं तो आप माफ़ी भी इसलिए मांगते हैं क्योंकि आप किसी को हर्ट नहीं करना चाहते। तो आई थिंक कि खुदा का हमारा रिलेशनशिप भी वो एक प्यार का रिलेशनशिप है कि जिसमें आप गलतियाँ करते हो, लेकिन खुदा आपको कॉन्स्टेंटली बताता है कि यार साइमन आज तूने फ्राइडे बार पे नहीं जाना, नॉट बिकॉज कि मैं कमिटमेंट की है, नहीं, बट बिकॉज मुझे प्यार और मैं उसकी बात को मानना चाहता हूँ क्योंकि वो मेरे से प्यार करता है, राइट। डज दैट मेक सेंस? इट्स ऑल अबाउट लव, राइट। अगर आप उससे प्यार करते हो तो फिर आपको सारी चीज़ें आप उस नज़र से देखोगे कि नहीं यार ये मेरे लिए अच्छी नहीं है और हमारे रिश्ते के लिए चीज़ें अच्छी नहीं हैं, तो मुझे ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और जब आपका ये रिलेशनशिप आपकी पूरी लाइफ में आपका रिलेशनशिप पक्का हो जाता है तो इवेंचुअली क्या होता है कि बाइबल कहती है कि देयर इज़ गोइंग टू बी अ बिग वेडिंग, जिसमें कलीसिया और मसीह को एक सेरेमनी होगी, और देन यू कैन फाइनली से हैप्पीली एवर आफ्टर का हैशटैग, तब आप फाइनली कह सकते हैं कि हैप्पीली एवर आफ्टर, अब शादी पक्की हो गई है। लेकिन रिमेंबर दिस इज़ अ जर्नी, और आप इस रिश्ते में गलतियाँ करेंगे बट यू हैव टू मेक इट स्ट्रॉन्ग। और मेरे ख्याल से एक और वर्स है, आखिरी वर्स है, मैं शेयर करना चाहूँगा कोरिन्थियंस में। थोड़ी लंबी है लेकिन मैं सिर्फ इसका एक निचला पार्ट पढ़ूँगा। अच्छा, इसके बारे में मैंने 3 बार खुदावन से इल्तमास किया। किसके बारे में? ऊपर पॉल लिखता है कि मेरी ज़िंदगी में कांटा था, वी ऑल नो, वो एक कांटे की बात करता है, हमें बताते नहीं कांटा क्या था, लेकिन वो कहता है कि इस कांटे के बारे में मैंने 3 बार खुदावन से इल्तमास किया, ये कह के कि मुझसे ये दूर हो जाए, मगर उसने मुझसे कहा कि मेरा फ़ज़ल तेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि मेरी कुदरत कमज़ोरी में पूरी होती है। बस मैं बड़ी खुशी से अपनी कमज़ोरी पर फ़ख्र करूँगा, क्योंकि मसीह की कुदरत मुझ पर छाई रहे, राइट। तो पॉल, मुझे ना बड़ी खुशी होती, जब मैंने आयत पढ़ी मुझे बड़ी खुशी हुई कि पॉल ने कभी भी अपनी ज़िंदगी का कांटा नहीं बताया, एक मिस्ट्री छोड़ दिया। अगर वो बता देता कि मुझे स्किन कैंसर था, किडनी स्टोन था, जो भी था, तो मेरे लिए वो रिलेटेबल ना होता, मैं उसको समझ ना पाता कि क्या है, क्योंकि मुझे तो वो प्रॉब्लम ही था। पर क्योंकि वो कांटा था तो हम इजीली रिलेट कर पाते हैं कि यार हाँ, मेरी लाइफ में भी कोई कांटा है, हमारी हर एक की लाइफ में कोई ना कोई कांटा है। वो टूटे हुए रिश्ते हो सकते हैं, वो पास की कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं, या कोई भी ज़िंदगी की स्ट्रगल हो सकती है, नौकरी की स्ट्रगल हो सकती है, कुछ भी कांटा हो सकता है। और मुझे लगता है कि खुदा कहता है कि मेरा फ़ज़ल काफ़ी है,
और अगर हम खुदा से उसका फ़ज़ल मांगें वो चीज़ें फ़िक्स कर सकता है। मुझे ना मैंने अनील से रिक्वेस्ट किया था कि एक गीत हमने एंड पे गाना है, तो अगर वो आ सकें। वो एक गीत नहीं, ज़बूर है, साम 51। और उस साम में बेसिकली छोटी सी स्टोरी है साम की कि दाऊद ने लिखा था ये साम, और ये तब लिखता है जब उसने एक ज़िंदगी में उससे एक गुनाह हो जाता है, एक औरत के साथ ज़ना हो जाता है, शादीशुदा औरत के साथ। और ना सिर्फ वो ज़ना करता है, वो उस औरत के बंदे को भी मरवा देता है। तो प्रॉफिट नेथन आता है और वो उसको बताता है कि खुदा ने कहा है कि यार मैं तो तेरे लिए सब कुछ किया, क्या चीज़ कमी पड़ गई थी मेरे प्यार में जो तुझे करने की ज़रूरत पड़ी। और दाऊद उस टाइम रियलाइज़ करता है कि उससे गलती हो गई, और वो अपने कमरे में जाता है और वो खुदा से माफ़ी मांगता है, और ये उस टाइम ज़बूर लिखता है ये। और मैं चाहता हूँ कि जब हम ये ज़बूर गाएं तो हर कोई अपनी ज़िंदगी में जो गुनाह, जो गलती कुछ भी किया है, वो देखें, उस पर रिफ़्लेक्ट करें और खुदा से उसका फ़ज़ल मांगें। मैं सोची थी दुआ भी हमारी ज़िंदगी में ज़रूरी है, और ईमान भी बहुत ज़रूरी है, और फ़ज़ल खुदा का होना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब तक खुदा का हाथ हम पे नहीं होता हम आगे नहीं बढ़ सकते। और मैं जब साइमन बोल रहे थे तो मैं सोची थी, बहुत से हम में से शर्माते हैं कि हम कभी भी अपनी कमी जो होती है ना वो किसी को बताते नहीं हैं। और उन्होंने अपने बारे में बताया, तो ये बड़ी बात है कि इंसान जब सामने खड़ा होकर अपनी बुराई बता रहा होता है और ये समझाने की कोशिश करता है कि मैंने तो ये गलत किया, अब आप गलत ना करना वो। तो मैं भी अक्सर जब भी मेरा मैथ का एग्ज़ाम होता है ना, तो मैं अपने आप को कमरे में बंद कर लेती हूँ। तो मैं ना हमेशा यही ऐप ही ढूंढती रहती हूँ कि मुझे कोई ऐसे ऐप्स मिल जाए जिसमें पूरे का पूरा सलूशन ही मुझे पता चले और ईजी वे में हो। और मैं दुआ ये कर रही होती है, खुदाया जी प्लीज़ मेरे आगे कोई इंटेलिजेंस सा बच्चा बैठ जाए जिसका एग्ज़ाम थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा है, कोई अच्छा सा हो जिसको मैं खुद ही कह दूँ कि भाई मेरी हेल्प कर देना। तो मैं ये इस टाइम पे ये दुआ कर रही होती हूँ। और जब मैं एग्ज़ाम में बैठी होती हूँ, अगर कोई सामने नहीं भी होता ना, तो मैं जब समझ में नहीं आता तो मैं सोची होती, वो हम बचपन में बोलते थे ना अक्कर बक्कर ये हो, तो मैं वो ना मल्टीपल चॉइस में ये देख रही होती हूँ कि अब ये जिस पे लास्ट आएगा ना इस पर क्लिक कर। फिर मैं किसी दूसरे का देखती हूँ तो वो उसका कुछ और होता है, इधर देखूँ तो कुछ और होता है, तो मैं फिर सोचती हूँ अब अक्कर बक्कर भी छोड़ तो देखी जाएगी। तो मैं वो जब बोल रहे थे तो मुझे अपना टाइम याद आ गया कि भाई मैं जब अपना पिछली दफ़ा फाइनल्स दे रही थी मैथ का, तो मेरे साथ एक पाकिस्तानी लड़की थी और मैं उसको कहती यार एक दूसरे की हेल्प करनी है, तो मैं तो इतनी अच्छी नहीं फ़ोन यूज़ करने में, तो पिक्चर लेके किसी को सेंड कर देंगे, पास करना है किसी तरह से। तो अब खैर खुदा ने हेल्प की और हम लोग निकले उस मुसीबत से बाहर। और मैं हमेशा जब भी मैथ की लेती तो मैं इनको बोलती हूँ, मेरे सामने कोई बोलो मुझे कोई काम ना कि चाहे मैं पढ़ूँ या ना, काम मैं कोई स्टडी करूँ या ना करूँ, लेकिन मैं घर का काम नहीं करती उस दिन जिस दिन मेरा टेस्ट होता है। और मैं एक हफ़्ता पहले इनको बोल दिया करती थी भाई मैंने नहीं, अब इस वीक मैंने कोई काम नहीं करना, कोई बच्चा मेरे सामने ना आए। तो हम सब एक किसी ना किसी चीज़ में कमज़ोर ज़रूर होते हैं, लेकिन हम बताते नहीं हैं। चले आज मैंने भी बता ही दिया तो और सबसे बड़ी बात है कि हमारा ईमान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जब शक करते हैं खुदा पे, हम अक्सर, मैं भी ये सोचती हूँ कि अगर मैं ये काम करूँगी हो जाएगा, लेकिन अगर ये काम ना हुआ तो फिर मैं क्या करूँगी। तो जब हम ऐसी छोटी छोटी बातों पे शक करते हैं ना, तो हम शायद हम कमज़ोर पड़ जाते हैं अपने ईमान पे। तो मैं मरकस 11 बाब उसकी 22 आयत से पढ़ूँगी। मार्क्स चैप्टर 11 वर्स 22। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खुदा पर ईमान रखो, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुंदर में जा पड़, और अपने दिल में शक ना करे बल्कि यकीन करे कि जो कहता है वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो, यकीन करो कि तुमको मिल गया और वो तुमको मिल जाएगा। आमीन। तो मैं अक्सर बहुत सी चीज़ों के लिए जब दुआ करती हूँ और वो चीज़ नहीं ना होती, तो मैं ये सोच रही होती हूँ, मुझे डर लग रहा था, उफ अब ये नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगी। तो मैं थोड़े दिन पहले जब बहुत सी चीज़ों के लिए डिस्टर्ब थी, मेंटली डिस्टर्ब थी, तो मैंने किसी से शेयर नहीं किया। और मैं क्योंकि हर बात अपने भाई और बहन से ज़रूर बताती, तो इस दफ़ा मैंने उनको भी नहीं बताया। तो मुझे रिसेंटली आंटी की कॉल आई और कहने लगी कि तू ठीक तो है ना। मैंने कहा जी मैं ठीक हूँ, क्यों क्या हुआ है। तो कहती हैं कि मैंने ऐसे तेरे लिए ड्रीम देखा कि तू परेशान है। तो मैंने कहा
मैं चुप कर गई। मैंने कहा मैं क्या, अब मैंने फिर आंटी को बाद में बताया, और मैंने जब आंटी से अपनी प्रॉब्लम शेयर की तो आंटी ने दुआ की, आंटी ने कहा कि वो चीज़ मुझे इसलिए दिखाई गई है कि खुदा तेरे लिए काम करना चाहता है और वो करेगा, तो तू बस दुआ कर और देखना वो काम हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है आंटी। तो मैंने दुआ करना शुरू किया, और शुक्र है कि अगर एक चीज़ आपको नहीं मिलती तो आपकी लाइफ में ऐसा होना चाहिए कि आपको मेंटली प्रिपेयर करना चाहिए अपने लिए कि ये नहीं हुआ तो शायद इसमें मेरा अच्छा है, अच्छा कुछ नहीं था, इसलिए खुदा ने मेरे लिए कुछ और बेहतर सोचा है। तो हम अक्सर दुआएं करते, हम अक्सर बहुत सी चीज़ें करते, लेकिन वो जब नहीं होती तो हम कई दफ़ा सोचते हैं पता नहीं क्यों नहीं होना तो चाहिए था। तो लेकिन वो चीज़ सम टाइम हमारी लाइफ में इसलिए नहीं होती क्योंकि वो खुदा की नज़र में, वो हमारी नज़र में तो ठीक है लेकिन वो खुदा की नज़र में ठीक नहीं होती, और खुदा उससे भी बेहतर हमारे लिए बहुत से काम करता है। तो जब हम शक करते हैं ना, ज़रा सा भी शक जो करते हैं ना कि पता नहीं होगा नहीं होगा, तो फिर खुदा हमें फिर हमारा जो ईमान डगमगाता है ना, तो वो फिर खुदा भी कहता है भाई चलो ठीक है अभी ज़रा इसको और दुआ करने तो फिर चलो मैं करता हूँ। लेकिन खुदा पे ईमान रखे और यकीन करे कि वो काम हो जाएगा। कलाम में लिखा है कि हर बात में शुक्रगुजारी करो क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्ज़ी है। तो जो चीज़ खुदा की तरफ से होती है वो हमारे लिए हमेशा ही अच्छी होती है। हमें ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि ये नहीं हुआ तो पता नहीं क्या होगा, ये नहीं हुआ तो पता नहीं आगे क्या होगा, क्योंकि खुदा हमारे से बेहतर जानता है कि वो हमारे लिए क्या करना चाहता है और क्या हमारे लिए सही है। तो हमें बस अपनी ज़िंदगी पे गौर करने की ज़रूरत है और ईमान लाने की ज़रूरत है कि हमने जब खुदा पे छोड़ दिया सब कुछ, तो पर आप दुआ करें और ईमान रखें कि वो हमारी ज़िंदगी में काम हो जाएगा। तो आमीन। और खुदा आप सबको बरकत दे। हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदा उनका शुक्र हो इन सब जवान बच्चों के लिए। आई थैंक गॉड फॉर ऑल दीज यंग चिल्ड्रन and I was thank God Philomena or Simon. I was expecting कि वो English में ही preach करेंगे, but it's good, they did a good job in Urdu. Amen. Praise God. I know Brother Yuga is here, and I believe you might have understood all the messages, the scripture references they gave. I trust the Holy Spirit have just conveyed all the message to you. Amen. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank God. एक दफ़ा और इन बच्चों के लिए तालियां बजा सकते हैं। और हमारे पास और भी यंग बच्चे हैं जो अभी सामने नहीं आए। उसमें से एक हमारे यंग बच्चों में से वी हैव मुहीब हेयर, जो नीचे बैठा हुआ तबला बजा रहा है। वो कहा था कि मेरी यही मिनिस्ट्री है, आई एम गोना पार्टिसिपेट। तो मुहीब जी कैन यू खड़ा हो सकते तो हम तालियां बजाएंगे। आमीन। प्रेज गॉड। खुदा उनका शुक्र हो। प्रेज गॉड। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू बेटा। सिट डाउन। एंड और अभी मैथ्यू ने क्या करना था? Bible reading की? Yes, I know. All right. Praise God. Thank you, Jesus. और भी कुछ यंग बच्चे हैं जो आज नहीं आए और हमें ये भी नहीं पता कि क्यों नहीं आए, और वो उनकी फैमिलीज भी नहीं आई हैं। We don't know. तो खुदा जहाँ पर भी है खुदा उनको बरकत दे। और वी विल ट्राई कि हम फेसबुक पे इसको ये डाल दें रिकॉर्डिंग। मैनी टाइम्स सब कुछ वो इलेक्ट्रॉनिक्स है, मीडिया है, नो रिकॉर्डिंग है, कुछ ना कुछ, और वाईफाई सिग्नल्स हैं, कुछ ना कुछ कहीं ना कुछ गड़बड़ भी हो जाती कभी कभी, बट वी आर ट्राइंग टू गेट इट, और अक्सर हो जाती कभी कभी। तो बट कोशिश करेंगे कि सबका जो कुछ भी सब ने शेयर किया है वो हो। आमीन। और आई थैंक गॉड। बच्चे तो बोलते हैं, और मैं देखता हूँ कि आइवन को आप वैसे बोलते नहीं देखते हो, मगर वो जब यहाँ पर पुलपिट पे खड़ा होता है तो ही स्पीक्स विद करेज, विद कॉन्फिडेंस। आमीन। कि खुदा ने जो कुछ भी कलाम शेयर किया है वो लोगों के साथ शेयर कर सकता है। वी थैंक गॉड। और जैसे जैसे शेयर किया गया है, गेब टॉक्ड अबाउट द ब्रेड ऑफ लाइफ एंड द प्रेयर। I mean, the prayer, that was so good. और फिलोमिना ने जैसे सदरक मीसक अब्दुन्नजू के how they were, they did not compromise with anything. They did not compromise with anything, and God helped them, and God was there in the fiery furnace with them as they believed in it, as they trusted on Him. He was there even in the fire. Jesus was Himself
in the fiery furnace with them. I mean, खुदावन यीशु मसीह खुद उस आग की भट्टी में उनके साथ था, और उसके साथ जैसे उसने आइवन ने जो डिस्क्राइब किया है विजडम के बारे में, कि विजडम कितना जरूरी है हमारे पास। और इन द बुक ऑफ जेम्स, याकूब के खत में लिखा है, वो लिखता है कि इफ एनीबॉडी लैक्स विजडम, अगर किसी में हिकमत की कमी हो, समझ की कमी हो, आस्क गॉड, वो जितना आपको चाहिए उतना देने के लिए तैयार है। आई मीन, ask God. If you are lacking wisdom, just ask God. In the book of James it says, in the first chapter, ask God. He will give you abundantly, as much as you need it to do whatever you want to do. Amen. Praise God. And और उसके बाद साइमन ने जो जितना जैसे ग्रेस और फजल पर सब अपना personal experience, he shared his personal experience, what he went through, what he is going through, and thank God for my brother Hugo. He mentored Simon, and that's there. Here it is him, speaking on grace, because he received the grace. उस पर फजल हुआ है। हर एक के ऊपर, जिसके ऊपर फजल होता है वही वो यहां पर खड़ा होके तो बोल सकता है। आमीन। प्रेज गॉड। और मेरा ईमान है, हम दुआ करते हैं जो आज बच्चे नहीं भी आए उन पर भी खुदा उनका फजल हो, और some that's what we compromise, sometimes we don't, nobody understands, और बच्चों के पेरेंट्स भी कभी कभी अंडरस्टैंड नहीं करते, बच्चे भी अंडरस्टैंड नहीं करते कि हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू कम टू द हाउस ऑफ गॉड एंड शेयर हिज ग्रेस व्हाट इज ऑन अस। आमीन। उसका जो फजल हम पर हुआ है हम सब लोगों के साथ शेयर करें, और इट्स सच अ वंडरफुल ओकेजन और मोमेंट्स एंड और एक वक्त होता है कि हम उसका जो फजल हम पर हुआ है वो सबके साथ शेयर कर सकें। आई डोंट थिंक they all understand. I don't think everybody understands. But मैं ये जरूर सोचता हूं कि जो यहां पर आज इबादत में शामिल हैं उन पर सब पर खुदा उनका फजल हुआ है, और हम दुआ करेंगे कि उन सब पर भी फजल हो जो आज नहीं है। आमीन। प्रेज गॉड। और क्योंकि खुदा उनका फजल तो मुफ्त है, हालेलुया, वो मुफ्त है और वो सबको देना चाहता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है, साइमन ने जैसे ग्रेस का शेयर कर रहा था, तो ऑफ कोर्स हमें पॉल डिड नॉट मेंशन व्हाट वाज दैट, वो उसका नाम, स्पेसिफिक नाम नहीं है कि वो क्या कांटा था, कांटा कैसा था। बट इफ वी रीड इन 7th verse, इट सेज समथिंग, कि वो एक शैतान का मैसेंजर था। उसका नाम नहीं है कोई भी कि कौन किस तरीके से वो शैतान का मैसेंजर वो आपको आके तो वो चुभोया जाता है, इसका कोई नाम नहीं है, कुछ नहीं पता हमें, पॉल नहीं बता रहा। बट ये जरूर वो बता रहा है कि शैतान का मैसेंजर मुझे चुभोया गया है। वो किस लिए चुभोया गया है और चुभोया जाता है कि ताकि मैं फूल ना जाऊं, ताकि मैं प्राउडनेस ना आ जाए, मुझे गुरूर मुझ में ना आ जाए, और इसलिए वो ताकि वो शैतान का मैसेंजर आके मुझे वो कांटा जो है, वो कांटा तो चुभता है, तो बट पॉल कहता है वो इसलिए कि वो मुझे मुक्के मारे आके, दैट ही में बफेट मी, मुक्के मारे आके कि मैं फूल ना जाऊं, मुझे में कोई प्राउडनेस ना आ जाए कि आओ आज मैंने बड़ा अच्छा मैसेज शेयर किया। गॉड वांट्स अस टू हम्बल आवरसेल्व्स, राइट। और उसका वो यही है कि वी हैव टू हम्बल आवरसेल्व्स, एंड वी थैंक गॉड वी हैव वन मोर यंग फेलो हियर, भाई रिचर्ड, पास्टर वहाँ से फिलाडेल्फिया से भाई रिचर्ड का ताल्लुक है पास्टर अजहर आलम के चर्च से, उनके वहाँ पे मिनिस्ट्री में। ही इज़ अ यंग इवेंजलिस्ट ऑल्सो। और आज वो मैनहट्टन में थे तो मुझे कहने लगे कि मैं आना चाहता हूँ। एनीबडी रिमेंबर रिचर्ड फिली? यू नो हमने साथ में फिलाडेल्फिया में खाना भी खाया था पास्टर सुभाष गिल के साथ। आई मीन प्रेज गॉड। तो आई विल रिक्वेस्ट रिचर्ड टू कम एंड share for 5 minutes if he whatever he has in his heart for youth, and also उनके पास एक प्रोजेक्ट भी है जो चर्च अपना बिल्ड करना मांग रहे हैं वहाँ पर फिलाडेल्फिया में के एरिया में, तो उसके बारे में भी बता सकते हैं। एंड वी विल प्रे अबाउट इट, एंड इन फ्यूचर इफ गॉड ब्लेसेस अस एंड गिव्स अस ग्रेस वी कैन आल्सो शेयर समथिंग। आई मीन प्रेज गॉड। रिचर्ड। गुड आफ्टरनून सबको।
मैं बहुत खुश हूँ आज कि मैं आज आपकी चर्च सर्विस में शामिल हूँ। जब मैंने पाजी साहब से सुबह बात की थी, उन्होंने मुझे बोला हमारी यूथ सर्विस है, तो मैंने बोला यूथ मतलब हेल्प करेगी राइट? तो उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, यूथ रन करती है सब कुछ। और जब मैं यहाँ पे आया मैंने खुद देखा कि इट वाज अ ब्लेसिंग कि बच्चों ने जो शेयर किया अपने, एंड पादी साहब ने वो फ्रीडम दी कि वो गलतियाँ भी करें लेकिन अपना दिल खोल के प्रीच करें। एंड दीज आर योर फ्यूचर लीडर्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरा नाम रिचर्ड है, रिचर्ड जस्टिन। मैं फिलाडेल्फिया से आया हूँ। ये आज खुदा का प्लान था मेरे लिए कि मैं यहाँ आऊँ, क्योंकि मैं मैनहट्टन में था और मुझे पास्टर साहब ऑलरेडी मिले थे थोड़े हफ्ते पहले। तो मैंने बोला अजहर भाई को, ही इज़ माई ब्रदर ऑल्सो, पास्टर अजहर, मैंने उनको बोला कि अंकल डायरेक्ट है वहाँ पे राइट? उन्होंने बोला या इफ़ यू गोइंग देयर जस्ट विजिट हिम। मैंने बोला क्योंकि संडे है एंड आई डोंट वांट टू मिस माई चर्च। आई डू मिस माई चर्च देयर, बट फॉर सम वर्क आई हैड टू कम हियर एंड आई काउंट माई सेल्फ वेरी ब्लेस्ड कि मैं आज इधर आया बच्चों के साथ। एक छोटी सी टेस्टिमनी शेयर करूँगा। गेब ने जो बोला और सिस्टर ने जो बोला है उनको मिला के, इट्स ऑल अबाउट प्रेयर एंड फेथ। इट्स अबाउट 2 or 3 days ago ये इंसिडेंट हुआ। मुझे एक ब्रदर मिले, उनका नाम है अल्फ्रेड डेविड। वो अंकल अर्नेस्ट के बहुत क्लोज फॉलोअर हैं, तो जो मेरी तरह जो अंकल अर्नेस्ट के बहुत बड़े फ़ैन भी हैं, एंड ही सिंग्स वेरी वेल। तो उन्होंने मुझे रैंडमली, हम लोग मॉल में मिले, उन्होंने मुझे बोला, म्यूज़िक की बात शुरू हो गई एंड फिर उन्होंने मुझे बोला यार रिचर्ड 6 साल हो गए मुझे यहाँ आए हुए, मैं अपने साथ अंकल अर्नेस्ट की इतनी सारी VHS लेकर आया था जो हमें पता है सबको, पर मेरी कन्वर्ट नहीं हो रही वो, क्योंकि उसको DVD में डालना था। क्योंकि मैं भी चर्च के लिए यूट्यूब के साथ बहुत क्लोजली वर्कआउट करता हूँ। ब्रदर ने उसके बारे में बात की है साउंड एंड मीडिया के अंदर। तो उन्होंने मुझे बोला कोई कन्वर्ट करने के लिए नहीं मिल रहा, लगता है वापस ही भेजनी पड़ेगी। तो मैंने बोला आप फिक्र नहीं करें, हैव फेथ एंड हम दुआ करेंगे इसके बारे में। उन्होंने बस इतना बोला। उसी रात को फेसबुक पे मैं स्क्रॉल कर रहा था, मुझे किसी ने एक ऐड डाली थी दैट वी ट्रांसफ़र योर VHS वीडियो टू DVD। उसी रात को मैंने भाई को मैसेज करके बोला भाई मैं आपको मिलता नहीं हूँ, क्योंकि हमारे चर्चेस के टाइम क्लैश होते हैं, तो मैं कभी इनको मिलता नहीं हूँ, पर ये हमारी मीटिंग दिस वॉज मेंट टू बी, इट वॉज फॉर अ पर्पस, एक पर्पस के मिला। तो इट्स जस्ट अ थिंग दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू। एक दूसरी चीज़ मैं आपके साथ जो शेयर करने आया हूँ विच इज़ कि खुदा ने इस साल हमें ये बर्डन दिया कि हम उसका घर बनाएं। इस टाइम पे फिलाडेल्फिया में चर्चेस बहुत हैं, लेकिन ऐसा कोई चर्च नहीं है जिसकी अपनी खुद की बिल्डिंग है। ये मेरे पास्टर्स जो हैं, आई थिंक आई हैव टू गिव हिम अ लॉट ऑफ क्रेडिट, और जो हमारी पूरी एल्डर्स की टीम है जो उन्होंने ये विजन क्रिएट किया है एट द मोमेंट, हम इस पे वर्कआउट कर रहे हैं। वी आर अ फ्यू वे देयर। हम लोग को पता है कि इट्स अ बिग प्रोजेक्ट। जो फंड्स हमें चाहिए एट द मोमेंट वो है एस्टिमेटेड एट $1.5 million, लेकिन वो हमारे लिए बड़ी बात नहीं है क्योंकि खुदा हमारे साथ है, ठीक है। उसके साथ साथ 350,000 हमने ऑलरेडी रेस कर लिया विद इन अ फ्यू मंथ्स। पास्टर साहब आए थे, अंकल पास्टर सुभाष गिल भी आए थे हमारे साथ, एंड आई गेट टू स्पेंड टाइम विद हिम। इट वाज अ ब्लेसिंग फॉर मी, क्योंकि वो भी मेरे हीरो हैं, मेरे रोल मॉडल हैं। उनके साथ काफ़ी हेल्प करते हैं मेरी टू ग्रो इन म्यूजिक एज वेल। तो देयर वाज दिस थिंग दैट वी हैव इन आवर हार्ट, क्योंकि मेरा ताल्लुक है दुबई से। आई वाज बोर्न देयर, ग्रो अप देयर। इस चर्च के साथ मैं बचपन से ही था, क्योंकि मैं आया था एंड देन आई वेंट बैक, बट चर्च की हेल्प करने के लिए, एंड आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड, आई एंडेड अप हियर, क्योंकि सब खुदा का प्लान होता है कि मैं आया। सो आई हैव दिस ब्रोशोर। हमारे पास एक वीडियो भी है, और ये वीडियो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। इसका नाम है अ प्लेस टू फाइंड पीस एंड अ प्लेस टू फाइंड पर्पस, जो हमारा इस टाइम पे मोटो चल रहा है। आई हैव ये ब्रोशोर्स हैं हमारे पास जो बेसिकली डिस्क्राइब करते हैं कि व्हाट वी वांट टू डू, हमारी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, हमारी क्या नीड्स हैं फॉर क्रिएटिंग अ चर्च जिसमें लोग आ सकें और जो दूसरे चर्चेस भी हमें ज्वाइन कर सकें, ताकि हमारे पास बड़ों के लिए, बच्चों के लिए, क्योंकि मेनली इन द फ्यूचर हमने तो होना नहीं, जो बड़े हैं हमारी जनरेशन और हमारी बाद की जो जनरेशन आएगी, ये उनके लिए है, ताकि उनके पास एक घर हो, ताकि वो आ सकें, आके प्रे कर सकें। ये उन बुज़ुर्गों को भी के लिए भी है कि हम चाहते हैं कि इट शुड बी इस चर्च के अंदर हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वेदर इट्स साउंड, इट्स व्हील चेयर एक्सेसिबल, कि वो उसके अंदर पार्किंग लॉट भी हो, क्योंकि कोई भी इवेंट होती है यूजुअली फिलाडेल्फिया के अंदर वो कुछ रेंटेड ही होता है। सो दिस इज़ अ विजन दैट गॉड गेव अस दिस ईयर, एंड वी आर जस्ट ट्राइंग टू मूव थ्रू इट, कि हम अपने यंगस्टर्स को
जैसे आज हमने देखा उसका परफेक्ट एग्जांपल था कि यंगस्टर्स को सिखाएं, उनको ट्रेन करें ताकि वो आने वाली जनरेशन को के लिए एक ब्लेसिंग बन सकें। और इसलिए मेरे पास ये फ्लायर्स हैं तो मैं ये पास्टर साहब को दे दूँगा। आपने डोनेशंस दे सकते हैं बाय चेक और वेबसाइट पे जाके इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन है, आप वेबसाइट पे भी डोनेट कर सकते हैं। विद दैट व्हाट वी कैन डू इज़ हम आपको एक रसीद भी देंगे ताकि वो अपने टैक्सेस के साथ ज्वाइन कर सकें इन द फ्यूचर जब आपका टैक्स का टाइम आए। एंड देन आई लाइक टू थैंक पास्टर डेरेक अगेन वन मोर टाइम कि उन्होंने मुझे ये चांस दिया और खुदा का कि मुझे मौका दिया ताकि मैं आपके साथ आके आपकी सर्विस ज्वाइन कर सकूं और एक ब्लेसिंग बन सकूं। थैंक यू पास्टर। Thank you, Jesus. Hallelujah. आइए हम दुआ करते हैं, इन यंग बच्चों के लिए भी दुआ करते हैं और हदिया नजराने के लिए भी दुआ करते हैं। आइए 1 मिनट के लिए खड़े हो जाते हैं, फिर हम रिचर्ड से एक गीत भी सुनेंगे और उसके बाद फिर हम यहाँ से रुखसत होंगे। खुदा उनका शुक्र हो, खुदा उनकी तारीफ हो। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Father God, in the name of Jesus, I come before you, Lord. I worship you, Lord. I worship you, Lord. I worship you, Lord. You are the most high God. You are the soul loving God, Lord. You are one that is worthy of all our worship, all our praises. All the glory belongs to you, Lord. All the worship belongs to you, Lord. Hallelujah. खुदा तेरे सिवा कोई है नहीं, कोई और है नहीं, कोई है नहीं जिसकी हम प्रस्तिश करें, जिसकी हम सताइश करें, जिसकी हम हमद करें, जिसको सिजदा करें, जिसके कलाम की खुशखबरी, जिसके फजल की खुशखबरी हम लोगों के साथ शेयर करें। खुदा कोई और है नहीं, खुदा सिवाय तेरे खुदा और कोई है नहीं। खुदा मैं अपने तमाम तरीन जवान बच्चों को जिन्होंने खुदा अपने अपने दिल से जो कुछ तूने इनको समझाया, जो कुछ तूने इनको सिखाया, जो कुछ उन्होंने महसूस किया और एक्सपीरियंस किया, खुदा जो कुछ तूने उनके साथ कलाम किया, उन्होंने जब खुदा ये सारी दुनिया के साथ इस वक्त खुदा जहां पर भी फेसबुक या खुदा यूट्यूब का एक्सेस है, खुदा ये बच्चों का ये पैगाम जाए, खुदा यीशु के नाम से वो लोग बरकत पाएं, जवान बच्चे बरकत पाएं, बड़े बच्चे बरकत पाएं, खुदा चर्चेस बरकत पाएं और दूसरे लोग जो अभी तुझे नहीं जानते किसी भी तौर पर तेरा नाम ही सुना हो, खुदा वो लोग भी बरकत पाएं। खुदा कि तुझ पर ईमान रखना, तुझसे बातें करना, दुआ करने में कितना ही खुदा जरूरी है कि खुदा क्योंकि तू जिंदा खुदा है, दुआओं का सुनने वाला और जवाब देने वाला है। खुदा जब तुझ पर ईमान रखा जाए तो खुदा तू आग की भट्टी में भी बचाने के लिए मौजूद होता है। खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और अगर हम इस काबिल नहीं, हम इस लायक ना हो कि खुदा हमें बचाया जा सके, छुड़ाया जा सके, हमेशा की जिंदगी में शामिल किया जा सके या हम नजात पा सके, खुदा तेरा फजल ही हमारे लिए काफी है। हालेलुया। खुदा तेरा शुक्र हो और इस सब के लिए जो कुछ खुदा हमें अकल और समझ की जरूरत है, आज शाम हम इन बच्चों का पैगाम ही लेते हुए हम तेरे सामने खुदा ये दुआ करते हैं कि हमें अकल दे, हमें समझ दे। हम कमजोर हैं, हम नालायक हैं, हम सुस्त हैं, हम सो जाते हैं, हम भूल जाते हैं, हम इग्नोर करते हैं, हम टॉलरेट कर देते हैं खुदा, मगर तू वफादार खुदावंद हमेशा अपना फजल जारी करने के लिए खुदा बेचैन और बेताब रहता है कि कब कोई तुझसे मांगे और तू उसको खुदावंदा भरपूर करे, तू उसको मामूर करे। हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र हो खुदावंद यीशु, मैं तमाम ये जवान बच्चों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूं कि खुदावंद तेरा रूह का मसा इन पर ठहरा रहे, इनको और ज्यादा खुदावंद अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। खुदावंद यीशु आज जितने बच्चे यहां पर मौजूद हैं खुदावंदा, गैब्रियल, फिलोमिना, आइवन, साइमन और खुदाउंदा सना, जिन्होंने खुदाउन मैथ्यू, मुहीब, खुदाउन इन बच्चों ने तेरी हुजूरी में खुदाउंदा कलाम को खुदाउंदा जब शेयर किया है, तेरा शुक्र करते हैं। खुदाउन हम रिचर्ड जस्टिन के लिए भी तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जब उसने टेस्टिमनी शेयर किया है खुदाउन, और उस बड़ी रोया को जो खुदाउन तूने उनके चर्च को दिया है वो लेकर यहाँ पर आया है खुदाउन। इन जवान बच्चों के लिए हम दुआ करते हैं कि इसी तौर पर खुदाउन तेरे जलाल के लिए ये बच्चे इस्तेमाल किए जा सकें
इस्तेमाल हों और तेरी बादशाही में खुदावन एक बड़ा ही खास नगीने के तौर पर, बड़ा ही कीमती खुदावन एक पत्थरों की तरह पर खुदावन तेरी हुजूरी में लाए जाएं और लगाए जाएं और इस्तेमाल किए जाएं। खुदावन यीशु, हम इनके लिए बड़ी बरकत मांगते हैं। खुदावन, मैं तेरा खादम होते हुए इन तमाम जवान बच्चों के लिए जो आज नहीं भी आ सके, उनके लिए भी बरकत मांगता हूं, उनके लिए भी फजल मांगता हूं कि ये बच्चों के लिए खुदावन मैं दुआ करता हूं कि हर किस्म का फेलियर इनकी जिंदगी से दूर हो, हर किस्म की नाकामी इनकी जिंदगी से दूर हो। हेलो लॉर्ड, every setback, and we rebuke every setback, every failure, every unsuccessfulness, Lord, or anything, Lord, that the enemy had planned, Lord, we rebuke it, we cancel it, we reject it, and we bless these young children in the name of Jesus. In the mighty name of Jesus, we bless these children and we declare prosperity, we declare success, Lord, in their lives, Lord, and we declare a great wisdom in their lives, Lord, and your presence in your life, Lord. Wherever they will go, Lord, they will go in your presence, Lord. They will walk in your presence, Lord. They will talk in your presence, Lord. They will live in your presence, Lord. They will declare and proclaim the good news of your kingdom, Lord, of the gospel, Lord, of the saving grace of Almighty God, Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Father God, we bless you. Bless everyone, Lord. Bless everyone who is here right now and who received this message from these youngsters, Lord. खुदावन, हम तेरे उस तमाम बख्शिशों के लिए, बरकतों के लिए दुआ करते हैं जो खुदावन तेरे लोगों ने हदिये नजराने तेरी हजूरी में दिए हैं। खुदावन, तू अपने जलाल की दौलत के माफिक उन सबको बरकत लौटाना खुदावन यीशु, और इस पैसे को पर भी तेरी बरकत मांगते हैं कि खुदावंदा तेरे घर में की ज़रूरियात खुदावन इससे पूरी हो सकें, और खुदावन तुझे हर पल हर दम खुदावन जलाल मिलता रहे, और तू अपने लोगों को इसी तौर पर उनके दिए के वसीला से खुदावन, उनकी दहयकियों के वसीला से, ऑफरिंग्स और तरह तरह की उनकी जो मनाजाते हैं उनके वसीला से खुदावन यीशु, वो तू उनको खुदावन बरकत दे सके, तो अपने जलाल की दौलत की माफिक बरकत ले सके। खुदावन तेरा शुक्र करते हुए तेरे यीशु नाम में ये मांग लेते हैं, आमीन, हालेलुया। चंद लम्हों के लिए बैठेंगे। हम भाई रिचर्ड से एक गीत खुदा उनकी शुक्रगुजारी के लिए सुनेंगे और हम उसके बाद रुखसत होंगे यहाँ से। उसका वादा है वो तेरा, खुदा से मांगो मिलेगा। उसका वादा है वो तेरा, उसके वादे पे एतबार करो।
Praise Jesus, hallelujah. Good evening to everybody. मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ खुदावंद की कि उसने आज सबको ये मौका बख्शा कि वो खुदा के हुजूर में बोलें। मैं बेशक यहाँ पे नहीं थी, लेकिन मुझे पता है कि वो जो यहाँ पे ऊपर मौजूद थे वो अपनी खिदमत कर रहे थे और मैं अपनी खिदमत कर रही थी। तो लेकिन हम सब खुदा के बेटे बेटियाँ हैं। उसने हम सबको यही हमसे ये चाहता है कि हम सब उसी के नाम को जलाल दें। कोई भी खुदा के घर की खिदमत करता है, वो छोटी या बड़ी नहीं होती है। वो इंसान जो गेट पे खड़ा होकर लोगों को ग्रीट कर रहा है, उसकी भी खिदमत उतनी है जो बंदा यहाँ पे स्टेज पे खड़ा होकर बोल रहा है। तो सबकी खिदमत का लेवल डिफरेंट हो सकता है, लेकिन खुदा की नज़र में वो सब इक्वल हैं। इसीलिए जब हम दुआ में बैठे होते तो पास्टर लोग भी कहते हैं कि हम यहाँ पे सब एक जैसे ही हैं और सब आंखें बंद करके हम एक इक्वल हैं। तो वो खुदावन से उन्हें ये बात मिलती है, इसीलिए वो हमें ट्रांसफ़र करते हैं। और मैं जानती हूँ भाई ने भी बहुत खूबसूरत गीत गाया है। तो मैं जब वहाँ पे अपनी सीट पे बैठी हुई थी, तो जब अंकल ने मेंशन किया कि आप भाई गाते भी हैं, तो मैं अपनी बहन की तरफ उसे मुंह करके कही थी कि अंकल को कह के इन्हें कहीं कि कुछ गा दें फिर। तो क्योंकि मैं खुद वर्शिपर हूँ, तो मैं बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ जब कोई किसी ऐसे बंदे को देखती हूँ कि वो भी प्रस्तिश करता है। तो ऐसा नहीं, क्योंकि हम सब मिलके एक ही खुदा की प्रस्तिश करते हैं। तो ये चीज़ ना मेरे में नहीं है, ना मैं जानती हूँ कि जो रूह से सच्चाई से गाते हैं, किसी में ये बात नहीं होती कि मैं बहुत बढ़िया गाता हूँ, अगला बंदा नहीं गाता। हम सब मिलके एक ही खुदा की प्रस्तिश करते हैं, और जो रूह सच्चाई से प्रस्तिश करता है, खुदा की नज़र में वही बंदा ऊपर है। तो भाई ने बहुत खूबसूरत गाया। मैं मुहीब के लिए बहुत खुश थी कि मुहीब ने भी बहुत अच्छा बजाया, और फिलोमिना ने भी आई होप आई एम श्योर कि उसने भी बहुत अच्छे से प्रीच किया होगा। भाई साइमन ने, मैथ्यू ने, सना ने बहुत अच्छे तरीके से प्रिजाइडिंग की, और शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावन की। अनिल ने हारमोनियम प्ले किया। सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हो गया। और हम गेब और आइविन ने भी प्रीच किया। तो मैं बस बहुत शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद सबको, सब यूथ को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे, और यही हमारी नीड है। यही चीज़ मैं बच्चों को भी सिखाती हूँ कि हम इस चर्च के लिए, हम एज अ क्रिश्चियन हमारी यही नीड है कि हम खुदा के जलाल के लिए बोलें, क्योंकि यही हमारा मकसद है। इसके अलावा अगर कोई क्रिश्चियन बाहर घूम रहा है, तो मेरी नज़र में उसकी ज़िंदगी की कोई वैल्यू ही नहीं है। अगर वो खुदा की खिदमत नहीं कर रहा, तो वो किसी और ही रास्ते पे फिर जा रहा है, अगर खुदा की खिदमत नहीं कर रहा। सो एज अ क्रिश्चियन वी हैव टू प्रीच द वर्ड ऑफ गॉड, वी हैव टू डिक्लेयर हिज वर्ड, बिकॉज ही वांट्स टू सेव ईच एंड एवरी वन हु इज़ आउटसाइड। सो शुक्रगुजारी करते हैं इसके लिए। आप सब लोग आंखें बंद करें और हम दुआ करेंगे खुदावंद के हुजूर। जिंदा आसमानी जलाली बाप, शुक्रगुजारी करती हूँ क्योंकि तू भला है और तेरी शफ़क़त अबदी है। खुदावंद खुदा, तूने यहाँ मौजूद एक ज़िंदगी को जो यहाँ मौजूद है, मैं उसके लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ कि तू अपने हाथ को बढ़ाता है और अपने बेटे बेटियों को बचा लेता है। खुदावंद खुदा, तूने हमें अपना कलाम दिया है ताकि हम तेरे हुजूर में बोलें। खुदावंद खुदा, तो हमारी ज़िंदगियों को अपने मुताबिक ढाल, ताकि खुदावंद यीशु हम 100 गुना और 1000 गुना फल लाएँ। खुदावंद खुदा, तू तादाद नहीं देखता, बल्कि तू जोश और जज्बा देखता है। तो हमारी उस बेदारी को नज़र में लाता है, जो हम उस प्यार को जो हमारे दिल में तेरे लिए है। खुदावंद खुदा, तू हमें आसमानी मुकामों पे बिठाता है। खुदावंद यीशु, शुक्रगुजारी करते हैं तमाम इबादत के लिए, हर उस इन शख्स के लिए, तेरे बेटे बेटियों के लिए जिसने तेरे घर में खिदमत की है। खुदावंद यीशु, हम पास्टर डेरिक और स्टेला को तेरे हाथों में सौंपते हैं कि तेरे खुदावंद यीशु बंदे, खुदावंद यीशु तेरी भेड़ों को चराते हैं। और खुदावंद खुदा, तू हमारा अच्छा चरवाहा है, और तू खुदावंद खुदा चाहता है कि सब लोग बच जाएं, सबकी तौबा तक नौबत आए। खुदावंद खुदा, हम तमाम लोगों को, उन तमाम यंगस्टर्स को, उनके माँ बाप को, और जो कोई भी उनके खानदान घराने में, हम सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं। खुदावंद खुदा, जो आज तक भटके हुए हैं, खुदावंद खुदा, तू नहीं चाहता कि वो हमेशा भटके रहें। खुदावंद खुदा, हमें बेशक इंसान होते हुए गलती खता करते हैं, लेकिन खुदावंद यीशु तू हमें दोबारा उसी रास्ते पे ले आता है। खुदावंद यीशु, जो तेरा रास्ता है। खुदावंद खुदा,
मैं तेरे हुजूर में मिन्नत करती हूँ कि तू उन तमाम लोगों को जो तेरे हैं और भटके हुए हैं तूने अपने घर में लेकर आ, ताकि वो तेरे घर की नेमतों से आसूदा हो खुदावन खुदा, तेरे घर में खिदमत करें और खुदावन यीशु वो एक्सपीरियंस करे कि तू कितना भला है, तू किस तरह फेवर देता है। खुदावन यीशु तू हमारे साथ फेवर के साथ बात करता है। खुदावन खुदा, जो लोग तुझसे प्यार करते हैं, तेरे साथ चलते हैं, वो जानते हैं कि तू उनके साथ उन्हें किस किस तरह से बचाता है, तू उन्हें किस किस तरह से फेवर देता है। तू हर रोज़ हमें संभालता है खुदाम यीशु। हम तुझसे दुआ नहीं भी करते रात को तो फिर भी हमें अगले दिन उठा खड़ा करता है। खुदावन खुदा, हम अगर तुझसे नहीं भी मांगते कि खुदाम यीशु हमें अगला दिन दिखाना, तो फिर भी हमें अगला दिन दिखाता है। खुदाम यीशु, इन सांसों के लिए शुक्रगुजार हैं, हर उस चीज़ से जो हमारे अंदर है। खुदाम यीशु, तुझे जलाल दे। खुदाम यीशु, सर से लेके पाँव के तलवे तक छूना, और खुदावन खुदा हमें इसी तरह रूह में आगे बढ़ाना। और जो बेदारी खुदाम यीशु मैंने आज देखी अपनी यूथ में, उस बेदारी को तू 100 गुना बढ़ाना, उसे डबल कर खुदाम यीशु, और हमें दे खुदावन खुदा, उसे डबल कर, उसे 4 गुना बढ़ा, ताकि खुदाम यीशु इस चर्च की यूथ जो शीली हो, इस चर्च के में जो बच्चे घूमते हैं और आते हैं यहाँ पे, वो बच्चे जो शीले हो, सब में तेरा रूह का गहरा मसा छाता रहे। सबको ये शौक हो कि हमने खुदा के घर की खिदमत करनी है, हमने आगे जाना है, हमने खुदा के नाम का प्रचार करना है, हमने तेरा नाम आगे लेकर जाना है, ताकि खुदावन खुदा तू हमसे खुश हो। हम और कुछ नहीं चाहते, सिर्फ ये चाहते हैं कि तेरे नाम को जलाल मिले, और तेरे नाम को हमेशा जलाल मिलता रहेगा। खुदावन खुदा, शरीर हमेशा शर्मिंदा होगा और तेरी हमेशा फतह होगी। जो कुछ हमने तेरे यीशु नाम से मांगा, सब कुछ पा लिया। यही मांगते तेरे प्यारे जलाली यीशु नाम से, आमीन। आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। जो दुआएं मांगी गई हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं अपनी बेटी सना के लिए। खुदावन हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, जिसने टाइम में खुदावंदा, इन चंद हफ्तों में खुदावंदा, जब सारी मेहनत की है कॉल्स करने के लिए, इस प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट करने के लिए। खुदावन हम सना के लिए खास शुक्रगुजारी तेरी करते हैं, और खुदावन तेरी बरकत मांगते हैं, तेरा मसा मांगते हैं कि खुदावंदा आइंदा जिंदगी में भी खुदावन यीशु तेरा मसा, तेरी खुदावंदा बरकतें, आसमान जो तेरा अच्छा खजाना है उस पर खुला रहे। और खुदावंद इस वक्त तेरी बेटी की जो भी जरूरियात हैं उसकी जिंदगी की, उसकी खुदावंदा जो भी उसकी डिजायर्स हैं, जो भी उसकी ख्वाहिशात हैं खुदावंदा, जब वो तुझ में मसरूर है, और खुदावंदा तेरे इस खुदावंद इस खासकर इस तेरे जी उठने के दिन के लिए खुदावंदा जवान बच्चों की इबादत को कोऑर्डिनेट करने के लिए जो उसने मेहनत की, उसको खुदावंद तू अपनी हजूरी में कबूल कर और अपने जलाल की दौलत की माफिक बरकत देना खुदावंदा। और क्योंकि जैसा हमने सुना है तेरे कलाम में आज बच्चों से कि खुदावंद तू दुआओं का सुनने वाला और जवाब देने वाला खुदा है, अपनी बेटी की दुआओं को सुनना, कबूल करना, और खुदावंद तू बरकत देना। और जो कुछ खुदावंदा तूने अपनी बादशाही में फिर खुदावंदा तूने उसके लिए प्लान बनाया है कि वो तेरी खिदमत में जो भी उसका रोल है खुदावंद तू उस पर जाहिर करना, और इन सब बच्चों पर जाहिर करना कि खुदावंद वो इसी तरह पर बढ़ते तरक्की करते चले जाएं। हम तमाम मासूम बच्चों के लिए भी, छोटे बच्चों के लिए भी दुआ करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं कि तू वो इसी तौर पर खुदावंद तुझ में बढ़ते जाएं, तरक्की करते जाएं। हम समरीन के लिए भी दुआ करते हैं खुदावंद, जब वो छोटे बच्चों की टेक केयर करती है तो खुदावंद तेरा जलाल, तेरा मसा, तेरा विजडम उसके लिए मांगते हैं खुदावंद, तेरा विजडम, तेरी समझ, तेरी हिकमत उसके लिए मांगते हैं कि वो किस तौर पर वो और आइलीन मिलकर, समरीन और आइलीन मिलकर खुदावंद यीशु इस जवानी में इन छोटे बच्चों के लिए भी खुदावंदा तेरी बादशाही में एक बहुत ही कीमती काम कर सकें। और जैसे वो कर रही हैं उनके लिए हम कुव्वत, ताकत और खुदावंदा अबलीस का हर वो प्लान जो किसी भी तरीके से फेल करने वाला होता है उसको हम रिजेक्ट करते हैं और उसको हम रिमूव करते हैं, उसको हम हमेशा के लिए दूर करते हैं कि ये बच्चियां तुझ में खुदावंदा मसरूर रहें और इसी तौर पर तेरी खिदमत करती रहें, ये बेटे तुझ में मसरूर रहें और इसी तौर पर खिदमत करते रहें। खुदा तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी हमद हो खुदा, तेरे नाम को जलाल मिले, तेरे यीशु नाम में सब कुछ मांग लेते हैं, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत हम सब के साथ और सब ईमानदारों के साथ आज से अब तक होती रहे, आमीन।